We have started this Java package. The package contains some types of classes, interfaces, and sub-packages. Yesterday we have seen classes like system class, a scanner class. Okay, so some types of classes, interfaces, and packages, sub-packages. Okay. Then packages are categorized into two types: built-in package and user-defined package. Built-in packages and user-defined package. Okay. The built-in packages that is already defined. For example, Java is the main package, and these all are built-in packages: language, util, AWT. Some classes are there in these packages. The system and string class defined in language package, array list, map, scanner, this all are there in util package. Button class, radio button, checkbox, all are defined in AWT package. These are built-in packages already defined in the Java programming language, built-in packages. Okay. Now we can create user-defined packages also. User-defined package. See, to create the package, the keyword is package only. Okay, the package keyword is used to create a package in Java. You have to write the keyword package, then you have to write the package name. Package name. This is package name. Okay, you can give any name. We are taking my pack, semicolon, then class name, then main method of Java, then we are printing one statement, welcome to package. System.out.println, welcome to package. Now see, to compile the package, this is a syntax. Okay, and see, to compile the package, what we are doing in other programs, Java C class name dot Java, Java C class name dot Java. Okay, but compile के लिए compile the package in Java is different. Compile syntax is different. Java C class name dot Java नहीं है, Java C hyphen D डायरेक्टरी यहाँ पे आएगा. सिंटैक्स याद करो आप. Java C hyphen D यहाँ पे डायरेक्टरी है, यहाँ पे जावा फाइल है. तो सी हाइफन डी का मीनिंग ये है, हाइफन डी का मीनिंग है, हाइफन डी which specifies a destination where to put the generated class file. हाइफन डी ये बताता है, हाइफन डी तुमको लिखना ही है कंपाइल करने में. हाइफन डी ये बताता है कि where you have to put the generated class file. क्योंकि जब after compiling the program a class file is generated, right? After compiling the program, class file is generated. तो हाइफन डी यहाँ पे तुमको डायरेक्टरी का नाम लिखना है, कहाँ पे तुमको क्लास फाइल सेव करवाना है, कहाँ पे तुमको क्लास फाइल सेव करवाना है, यहाँ पे आएगा वो. ठीक है. देन यू हैव टू राइट द जावा फाइल नेम. जैसे फॉर एग्जांपल क्लास नेम सिंपल है तो क्या लिखोगे, सिंपल डॉट जावा, सिंपल डॉट जावा. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ सपोज you can use any directory name, like see in case of windows operating system we are using. यहाँ पे java c hyphen d, suppose तुमको d drive में और e drive में, let us consider d drive में abc folder में you have to keep the class file. तो क्या लिखोगे, java c hyphen d, in place of directory you will write this. d drive में मुझे abc folder में क्लास फाइल को स्टोर करवाना है. इन प्लेस ऑफ डायरेक्टरी यू कैन राइट दिस. अगर तुम्हारा ई है, कोई और फोल्डर डायरेक्टरी है तो वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, और फोल्डर का नेम तुम मेंशन कर सकते हो, कोलन स्लैश देके. अगर लेट अस कंसीडर इफ यू वांट टू कीप द पैकेज विद इन द सेम डायरेक्टरी, अगर तुमको क्लास फाइल जहाँ पे फाइल सेव कर रहे हो वहीं पे तुमको क्लास फाइल भी रखना है, तो तुम क्या कर सकते हो, इतना डायरेक्टरी से लिखने का नीड नहीं है. ठीक है, डायरेक्टली तुम लिख सकते हो जावा सी हाइफन डी, इन प्लेस ऑफ डायरेक्टरी यू कैन यूज डॉट, यू कैन यूज डॉट, इन प्लेस ऑफ डायरेक्टरी यू कैन यूज डॉट. ठीक है, कब डॉट यूज करोगे, इफ यू वांट टू कीप द पैकेज विद इन द सेम डायरेक्टरी, जहाँ पे फाइल सेव करो वहीं पे क्लास फाइल वहीं पे पैकेज तुमको रखना है. ठीक है, तुम क्या यूज करोगे, इन प्लेस ऑफ डायरेक्टरी यू विल यूज डॉट. अगर कहीं और पे तुमको रखना है यू कैन इन प्लेस ऑफ डायरेक्टरी यू कैन मेंशन कहाँ पे रखना है.
यू कैन मेंशन। ओके, अगर सेम डायरेक्टरी में रखना है पैकेज, जहाँ पे फाइल सेव है वहीं पे पैकेज भी रखना है, तो इन प्लेस ऑफ डायरेक्टरी डॉट क्या यूज करोगे, डॉट, यहाँ पे लिखा है। ओके, सिंटैक्स याद कर लो क्या है। अभी यहाँ पे तो ये प्रोग्राम में व्हाट वी आर राइटिंग जावा सी हाइफन डी बताता है ये कि कहाँ पे तुमको क्लास फाइल रखना है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, डायरेक्टरी डॉट यूज करी। डॉट मीन मुझे पैकेज सेम डायरेक्टरी में रखना है। ओके, देन क्लास नेम डॉट जावा, क्लास नेम इज सिंपल, सिंपल डॉट जावा, यू विल कंपाइल इट एंड सी। ओके, और सिंटैक्स देखो, जावा जस्ट मैंने इंस्टॉल की होगी। ओके, बस इसका सिंटैक्स समझो सब, देन वी विल कंपाइल इट आल्सो, कंपाइल एंड रन। ओके, रन करने के लिए व्हाट इज द सिंटैक्स, रन करने के लिए जावा package name dot class name, क्या syntax है, java package name dot class name। note down these, everyone note down these points, syntax and run, syntax for compiling and running the program। रन करने के लिए syntax क्या है, java लिखना है, उसके बाद पैकेज नेम लिखना है, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, तो पैकेज नेम क्या था हमारा, माई पैक। ओके, तो माई पैक डॉट क्लास नेम, क्लास नेम सिंपल है हमारा। ओके, कंपाइल करने के लिए जावा सी हाइफन डी डायरेक्टरी डॉट यूज कर सकते हो प्लेस में, इफ यू वांट टू कीप द पैकेज इन द सेम डायरेक्टरी, एंड क्लास नेम डॉट जावा। नोट डाउन द सिंटैक्स एवरीवन, कंपाइल का, then to run the program, to run the java package, java package name dot class name, everyone note down this, how to compile and run the java package। आउटपुट तो यही मिलेगा, वेलकम टू पैकेज, राइट। जावा इंस्टॉल हुआ है, लेट्स सी। जावा सी इज नॉट वर्किंग। लेट मी कंपाइल वन प्रोग्राम, अगर अभी वर्क करता तो वी विल कंपाइल, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल रन एंड सी। जावा सी, ये प्रोग्राम तो रहेगा ही हमारे पास, जावा सी नहीं, अदर साइट से आपको डाउनलोड, ओरेकल साइट से आपको रेफर। Now remember this syntax to compile and run the Java package. The next section we will run and see. Okay, in command prompt. How to access, now the next one is how to access package from another package। See, there are three ways to access the package from outside the package। Three ways क्या है, थ्री वेज याद रखो अगर तुमको एक्सेस करना है पैकेज फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार, इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास नेम, फुली क्वालिफाइड नेम। सी, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम लोग ये यूज करते हैं पैकेज नेम, यूजिंग पैकेज नेम डॉट स्टार, ठीक है। सी, सी अगर हम लोगों ने दो क्लासेस बनाए सपोज, इसका मीनिंग यही, हाउ टू एक्सेस पैकेज फ्रॉम अनदर पैकेज। कोई और पैकेज को मुझे अपने क्लास में यूज करना है, जैसे इनहेरिटेंस पे नहीं करते हम लोग, पेरेंट क्लास को वी आर यूजिंग, राइट, लाइक दैट। अगर समझो सी यहाँ पे क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास बी में सपोज यू वांट टू एक्सेस दिस पैकेज पैक। ओके, यही लिखा है, हाउ टू एक्सेस पैकेज फ्रॉम अनदर पैकेज। एक पैकेज के अंदर, जैसे अभी माई पैक के अंदर पैक वाले को कैसे यूज करें, ये मीनिंग है। एक क्लास के अंदर जो पैकेज है माई पैक, क्लास बी में माई पैक वी हैव क्रिएटेड, सो इन दिस क्लास बी सपोज यू वांट टू एक्सेस दिस क्लास ए पैकेज, तो हाउ टू एक्सेस इट, देयर आर थ्री वेज है, या तो पैकेज लिखो, या तो पैकेज डॉट क्लास नेम, फुली क्वालिफाइड नेम। नाउ फर्स्ट सी, if you're writing package name, okay, if you use package dot star, अगर हम लोग ये मेथड यूज करते हैं package dot star, ठीक है, then all the classes and interfaces of this package will be accessible but not sub packages। अगर हम लोग package dot star यूज कर रहे हैं तो ये जितने भी पैकेजेस है, अगर हम उसी पैकेज का नेम यूज करते हैं, जितने भी क्लासेस और इंटरफेसेस डिफाइन है ये पैकेज के अंदर, वो एक्सेसिबल हो जाएंगे, मींस यूज कर सकते हैं, बट सब पैकेजेस नहीं यूज कर सकते। समझ रहे हो, अगर हम लोग पैकेज सिर्फ पैकेज लिखते हैं
जैसे क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ये पैकेज में जो भी क्लासेस एंड इंटरफेसेस है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और उसके सब पैकेजेस में. नाउ सी एग्जांपल के थ्रू यू विल गेट क्लियर आइडिया. इंपोर्ट कीवर्ड यूज टू मेक द क्लासेस. इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना है. ओके, नाउ सी एग्जांपल. लेट अस कंसीडर we are creating two class A and class B. क्लास A के लिए आई एम क्रिएटिंग पैकेज. कौन सा पैकेज का नेम है? पैक. एंड क्लास B के लिए आई हैव क्रिएटेड माय पैक. ठीक, कौन सा? दो क्रिएट कर दिए, एक पैक क्लास B के लिए माय पैक नेम का. लेकिन क्लास से आई एम टेकिंग वन मेथड. मेथड नेम क्या है? मैसेज. अब क्या प्रिंट करवा दी ये मेथड के अंदर? ब्लॉक. इन दिस मैसेज मेथड ब्लॉक वन प्रिंटिंग स्टेटमेंट हेलो. ओके, सेव कर दी a डॉट जावा से. देन इसको b डॉट जावा से सेव करेंगे, राइट. अभी पैकेज नेम b क्लास के आई एम क्रिएटिंग वन मोर पैकेज का नेम क्या है? माय पैक. नाउ इन b क्लास आई वांट टू एक्सेस दिस क्लास a पैकेज. इन b क्लास आई वांट टू एक्सेस क्लास a पैकेज. ओके, तो कैसे करोगे? इंपोर्ट. क्या लिखोगे? इंपोर्ट. क्या कीवर्ड है? अगर तुमको यूज करना है पैकेज को, दूसरे क्लास के पैकेज को एक्सेस करना है अपने क्लास में, तो कैसे? क्या कीवर्ड है? इंपोर्ट. इंपोर्ट क्या यूज करना है मुझे? पैकेज का नेम. क्या लिख दी मैं? पैकेज का नेम क्या है? ये पैक. ठीक है, पैक डॉट स्टार लिख दी मैंने. तो अगर तुम पैकेज का नेम लिखते हो, ये पैकेज का नेम ही है ना, पैकेज का नेम डॉट स्टार लिखते हो, मीन इसके क्लासेस एंड इंटरफेसेस तुम यूज कर सकते हो. इसके क्लासेस एंड इंटरफेसेस तुम यू कैन यूज. सी, अगर तुम इंपोर्ट और पैकेज नेम लिखते हो, इंपोर्ट और पैकेज नेम, इंपोर्ट पैकेज नेम क्या है? पैक. इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट स्टार लिखते हो अगर, इंपोर्ट पैकेज नेम क्या है? पैक है. ओके, पैकेज नेम डॉट स्टार. पैकेज नेम तो पैक वी हैव गिवन, डॉट स्टार मिला है. तो मीन्स जितने भी क्लासेस इंटरफेसेस डिफाइन है पैकेज में, वी कैन यूज इट. ओके, नाउ क्लास बी मेन मेथड. अभी तुमने इंपोर्ट किए वाला मीन्स तुम इसके क्लासेस इंटरफेसेस सब कुछ यूज कर सकते हो. दैट मीन्स तुम इसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, राइट. ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो क्योंकि तुमने ये लाइन लिखी हो. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ए ऑब्जेक्ट इक्वल न्यू देन अगेन क्लास नेम. ऑब्जेक्ट डॉट इसके मेथड को तुम कॉल कर रहे हो. आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास है, नाउ यू आर कॉलिंग दिस मेथड मैसेज. obj डॉट मैसेज. तो क्या आउटपुट आएगा? हेलो. समझ में आया? देयर आर थ्री वेज है टू एक्सेस पैकेज फ्रॉम अनदर पैकेज में. मींस माय पैक में हमने किए क्या किए? वी हैव एक्सेस क्लास ए पैकेज किए ना बाय यूजिंग. देयर आर थ्री वेज. तो हमने ये वाला वे यूज किया, फर्स्ट वाला. अभी इंपोर्ट पैकेज का नेम लिखो डॉट स्टार. यही किया. इंपोर्ट पैकेज का नेम क्या है वो लिखो, क्या है? पैक है, डॉट स्टार. मींस अभी ऐसे लिखने पर क्या होता है? क्लासेस एंड इंटरफेसेस हम यूज कर सकते हैं. तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास ए का, एंड देन ऑब्जेक्ट के थ्रू वी हैव कॉल्ड द मेथड. इज इट क्लियर एवरीवन? फर्स्ट वे, how to access package from another package by using import package name. Everyone, is it clear? Now we have to compile it also. पहले इसको सेव करना पड़ेगा a डॉट जावा के नेम से, इसको b डॉट जावा के नेम से. अभी जावा इंस्टॉल नहीं है, that's why I'm not saving it. In next lecture simultaneously we can compile and run. Is it clear? प्रोग्राम क्लियर है? स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी ऑफलाइन तो कोई नहीं है. Is it clear? No one is replying. Yes. Now see, second way क्या है? How to access package from another package? Second way is package dot class name. क्या लिखना है? package dot class name भी यूज कर सकते हो. import package dot class name. See, if you are using import package dot class name, then only declared class of this package, सिर्फ क्लास को ही एक्सेस कर पाओगे, इंटरफेसेस ये सब नहीं, क्योंकि तुम पर्टिकुलरली क्लास नेम मेंशन कर रहे हो उसमें. ये वाले वे में पैकेज नेम डॉट क्लास नेम. ओके, तो क्लास नेम यू आर मेंशनिंग,
मीन्स सिर्फ क्लास को ही एक्सेस कर सकते हैं, अदर परमिशन नहीं है इसमें. ओके. नाउ सी, इफ यू import package dot class name, then only declared class of this, जो भी क्लास में यहाँ डिक्लेयर करोगे वही एक्सेस कर पाओगे. Now see the example. Again we are creating two class A and class B. ठीक है. क्लास A के लिए I have created one package name pack. क्लास B के लिए पैकेज नेम I have taken my pack. ठीक है. क्लास A में क्या कर रही, वन मेथड I have created message, and message block जो है, one printing statement is there. Hello we are printing. Okay. Then in the next file b.java, we will save it as b.java, right? Package name semicolon. Now in this class I want to use class A package. कौन सा वे यूज कर रहे हैं अभी हम लोग, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम. वी आर यूजिंग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम. इंपोर्ट कीवर्ड है पैकेज नेम डॉट क्लास नेम. पैकेज नेम पैक है, डॉट क्लास नेम क्या ए है. ओके. देन क्लास बी, मेन मेथड ऑफ जावा. Then we can create the object of class A, right? Because we have imported this class, right? Then we can create the object of class A. How we can create the object of any class? How we can create object of any class? You have to write the class name, then create the object equal new keyword, and again write the class name in semicolon. Okay. Then object dot method name. Object dot method name. Whatever object you have created, वो object को use करना है. हमने obj ली, तो obj ही लिखना है. Dot method name. Method name क्या है? Message. MSG. Okay. So we will get the output hello. क्या मिलेगा? Hello मिलेगा output. So this is another way. There are three ways. कौन से ways है? Three ways है to access package from another package. First way we have seen, you can write the package name as a import package name dot star. ठीक है, स्टार आ गया, इसका मीनिंग ये है. और क्लासेस इंटरफेसेस यू कैन एक्सेस. अगर तुम पैकेज डॉट क्लास नेम लिखते हो तो सिर्फ क्लास ही यूज कर पाओगे. ओके. थर्ड वे क्या है? फुल्ली क्वालिफाइड नेम. फुल्ली क्वालिफाइड नेम. If you use fully qualified name, then only declared class of this package will be accessible. Now there is no need to import, but you need to use fully qualified name every time when you're accessing the class or interface. यहाँ पे import keyword use नहीं होता है fully qualified में. सीरीज fully qualified name में import keyword नहीं use करना है. Okay. See this import keyword we don't have to use. So now there is no need to use import keyword, but you need to use the fully qualified name every time when you're going to access the classes or interface. Now see what is fully qualified name. Okay, what is fully qualified name? Let us consider. It is generally used when two packages have same class. For example, java.ut and java.sql packages containing date class. See, generally हम लोग fully qualified name कब use करते हैं? Let us consider कि जो class है date class, date button class, date class, system class, scanner class, several classes are defined in Java language, right? तो date class जो है, date time and date बताता है. Okay. Date class is defining java.ut में भी डिफाइन है, java.sql में भी डिफाइन है. ut and sql packages में date class, in these two packages date class is defined. Okay. तो जनरली कब यूज करते हैं? इट्स जनरली यूज व्हेन टू पैकेजेस हैव द सेम क्लास नेम. दो पैकेज में सेम क्लास डिफाइंड है. डेट ut में भी sql में भी. So it is better to define पूरा पाथ java.ut. समझ में आएगा ये util पैकेज का डेट क्लास है. If you are adding java.sql, then we will understand, compiler will understand ये sql क्लास का डेट, sql पैकेज का डेट क्लास है. Okay. तो जनरली ज्यादातर कब यूज होता है? जब क्लास नेम सेम होता है. दो पैकेज में, दो डिफरेंट पैकेजेस में क्लास नेम सेम होता है. वो केस में हम लोग फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करते हैं, मीन्स बताते हैं पैकेज का नेम.
Okay, अभी now see this is an example, you will get clear idea. क्लास ए और क्लास बी, अगेन टू क्लास ए क्रिएट, ठीक है, बिकॉज कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हाउ टू एक्सेस पैकेज फ्रॉम अनदर पैकेज, यही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना, 3 वेज है हाउ टू एक्सेस पैकेज फ्रॉम अनदर पैकेज, एक पैकेज में दूसरे पैकेज को एक्सेस कैसे करें. ओके, तो class name, and this class A we are creating package keyword package name pack ले रहे. Then message one method we have created and one block method का block ये system dot out dot println and hello we are printing. Okay, save कैसे करोगे, a dot java से ही save करोगे. Then by we are creating one more package my pack. Okay, उसके बाद class B main method of java. Now see ya, fully qualified name कैसे यूज करें यहाँ पे. See, package name not class name, अदर वे नहीं है इसका. 1 सेकेंड. सी यहाँ पे कैसे फुली क्वालिफाइड नेम यूज हो रहा है, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, ये पैकेज नेम पैकेज क्लास नेम ए है, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है. देन न्यू कीवर्ड, देन अगेन वी आर राइटिंग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम. इससे क्या हो रहा है, हम लोग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम डायरेक्टली हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही यूज कर रहे हैं. यहाँ पे मैंने कोई इंपोर्ट कीवर्ड नहीं यूज की, we have not used any import keyword, right? So if you're not using any import keyword, तुम fully qualified path दे सकते हो. fully qualified means directly you can define क्या तुमको what you want to access, ठीक है. तो what we are doing, ये भी fully qualified name हुआ. पैक डायरेक्टली तुम बता रहे हो कि पैकेज नेम डॉट क्लास नेम ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, पैकेज नेम पैक है, क्लास नेम ए है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. So you can call this method, message method को तुम कॉल कर सकते हो, ठीक है. If you import a package, सब packages will not be imported. अगर तुम पैकेज import लिखते हो, import keyword, ठीक है, तो क्या नहीं हो पाएगा, import keyword से सब पैकेजेस नहीं आएंगे, सिर्फ क्लासेस यू कैन एक्सेस, उसके जो सब पैकेजेस है वो नहीं यूज कर पाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल, 1 सेकंड ना, screen sharing stop. Three ways है, okay, how to access package from another package. Import, directly write the package name, import. दूसरा वे package dot class name, okay, ये import package name dot star है, import package dot class name बता रहे हो, ये fully qualified name है. okay, अगर तुम import keyword यूज कर रहे हो और पैकेज नेम लिख रहे हो, सिर्फ पैकेज नेम डॉट स्टार, स्टार मीन्स ऑल क्लासेस इंटरफेस यूज कर सकते हो, बट सब पैकेजेस नहीं. सब पैकेजेस नहीं मतलब अगर तुम उसके अंदर सब पैकेजेस और भी बना रहे हो तो वो एक्सेस नहीं कर पाओगे. ओके, सिर्फ क्लासेस और इंटरफेस. अगर पैकेज और क्लास नेम लिख रहे हो, इंपोर्ट पैकेज और क्लास नेम, सिर्फ क्लासेस ही यूज कर पाओगे, वही क्लास. फुली क्वालिफाइड लिख रहे हो, फुली क्वालिफाइड के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज नहीं होता है. जनरली कौन से केस में यूज होता है, व्हेन टू पैकेजेस हैविंग द सेम क्लास नेम, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा कर सकते हो. ओके, बट इंपोर्ट कीवर्ड नहीं यूज होता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, वी आर नॉट यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड डायरेक्टली, हम लोग फुल पाथ डिफाइन करें, वी आर डिफाइनिंग द फुल पाथ without using the import keyword. Package name or class name we are writing, we are creating the object directly without using the import keyword in the first line. In the first line we are not using the import keyword directly, we are giving the full path, fully qualified path, fully qualified domain. Okay, package dot class name and object equal new package dot class name and object dot message. Message क्या है, message is method name, right? So कितने ways है, there are 3 ways to access package from another package. एग्जाम में आ सकता है, what are the 3 ways? Import package dot star, पैकेज मीन पैकेज नेम बताना है यहाँ पे, import package name dot star semicolon, import package dot class name, यहाँ पे स्टार नहीं आएगा बिकॉज क्लास नेम लिख रहे हो डायरेक्टली, ठीक है, सेमीकोलन है, 6 स्टार नहीं है.
यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम है. Is it clear everyone? We have to run it also. Okay? ये तीनों रन करेंगे in the next lecture. Is it clear till now? Any doubt? No, ma'am. Okay, now see how to send the class file to another directory or drive. क्लास फाइल जो है, जो क्लास फाइल जनरेट होता है उसको अनदर डायरेक्टरी में कैसे सेंड करें, ठीक है, ये देखना है. हाउ टू सेंड द क्लास फाइल टू अनदर डायरेक्टरी और ड्राइव. एवरीवन पे अटेंशन. नेक्स्ट लेक्चर डायरेक्टली वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट ओनली. इसके कॉन्सेप्ट समझ लो अभी से. हाउ टू सेंड द क्लास फाइल टू अनदर डायरेक्टरी और ड्राइव. सी देयर इज अ सिनेरियो. आई वांट टू पुट द क्लास फाइल ऑफ a.java source file classes folder of C drive. a.java फाइल को C ड्राइव में डालना है. समझो कोई भी एक फाइल है, मुझे कोई और डायरेक्टरी में उसको डालना है, तो कैसे करें. ओके, नाउ सी सपोज a.java है, सोर्स फाइल है, इसमें प्रोग्राम है a.java में. वो किधर पे है, E ड्राइव में मैंने सेव किया. कहाँ पे, ई में सोर्स फाइल ई में a.java सेव है, जैसे हम लोग करते हैं, राइट. अभी वो a.java जो ई ड्राइव में है उसका क्लास फाइल a.java का जो क्लास फाइल है मुझे अनदर डायरेक्टरी में सेंड करना है. सपोज सी में करना है. कहाँ पे करना है, क्लास फाइल सबको पता है ना. कंपाइल करने के बाद हम लोग फाइल नेम .java से सेव करते हैं, राइट. फाइल नेम कैसे सेव करते हैं, क्लास कैसे सेव, फाइल कैसे सेव करते हैं हम लोग. हाउ वी आर सेविंग दी फाइल, क्लास नेम .java, राइट, है ना. क्लास नेम सपोज ए, तो a.java. तो आफ्टर सेविंग दी फाइल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपाइलिंग. ठीक है, कंपाइल करने पे क्लास फाइल जनरेट होता है. डॉट क्लास उसका एक्सटेंशन होता है. तो क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ क्लास फाइल, डॉट क्लास, राइट. तो सपोज ई में तुम्हारा जावा सोर्स फाइल है, ठीक है. और तुमको क्या होना चाहिए, कंपाइल करने के बाद तुम्हारा क्लास फाइल तुमको ई में नहीं चाहिए, तुमको यू वांट टू सेंड इट टू अनदर डायरेक्टरी. क्वेश्चन समझ में आ रहा है बात. कहाँ पे देना है, सपोज सी में सेंड करना है मुझे. सी में क्लासेस फोल्डर के अंदर आई वांट टू सेंड दी सोर्स फाइल ऑफ ई में जो a.java सेव है, a.java का जो क्लास फाइल जनरेट मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ पे सेंड करना है सी डायरेक्टरी में, क्लासेस फोल्डर में. यही लिखा है, हाउ टू सेंड द क्लास फाइल टू अनदर डायरेक्टरी और ड्राइव. क्वेश्चंस क्लियर है, क्या करना है. Yes, everyone reply what you are doing. See, if you are not replying, then how can I continue? Stop कर देना चाहिए. तुम लोग पढ़ लोगे. रिपीट करना है. See how to send the class file to another directory drive. What is class file? कंपाइल करने के बाद क्लास फाइल जनरेट होता है. ये पीसी फॉर्मेट हुआ है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पता होगा. इसमें ई में भी आर सेविंग ना, ई में देखते कुछ क्लास फाइल है. सी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए. binary.java ई में हम लोग सेव कर देते हैं, याद है ना. binary.java ये जावा फाइल है. तो जैसे ही मैंने फाइल को कंपाइल की, कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल जनरेट होता है. बाइनरी का देखो क्लास फाइल है binary.class. क्लास फाइल का एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है. ये बाइट कोड फाइल होता है, ये ओपन नहीं होता है, पता है ना, बाइट कोड फाइल है.
अभी समझ में आया क्लास फाइल। तो सपोज ई में तुम्हारा ए डॉट जावा सेव है, कोई भी क्लास कोई भी सोर्स कोड को सोर्स फाइल, ये सोर्स फाइल है, डॉट जावा इज सोर्स फाइल, ये जावा फाइल जो है इसको सोर्स फाइल बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोग्राम है हमारा, राइट। तो सोर्स फाइल को किधर गया, हाँ, सोर्स फाइल का जो क्लास जनरेट होता है वो मुझे कोई और डायरेक्टरी में भेजना है। ई में है, लेट अस कंसीडर, तो मुझे अभी भेजना है सी में। कहाँ भेजना है, बाइनरी बाइनरी जावा जो फाइल है उसका जो क्लास फाइल है, क्लास फाइल बाइनरी डॉट क्लास, ठीक है, ये मुझे कहाँ भेजना है, अनदर डायरेक्टरी में, अनदर डायरेक्टरी में, लेट अस कंसीडर सी में भेजना है। अभी क्लियर है क्वेश्चन सबको? ये क्लास फाइल तो सेम डायरेक्टरी में होता है ना जनरेट, जहाँ पे तुमने सेव किया सोर्स फाइल। बात समझ में आ रही है? तुमको क्या करना है, क्लास फाइल को दूसरे डायरेक्टरी में भेजना है। इज इट क्लियर नाउ ज्योति? ज्योति ठीक है, नाउ लेट्स सी। फर्स्ट राइट दी प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम लिख के फिर देखना है। प्रोग्राम तो सिंपल है, प्रोग्राम सबको समझ गया होगा। कुछ नहीं किया, हम लोगों ने एक पैकेज क्रिएट किए है, उसका नेम माई पैक लिए है, वन क्लास में क्रिएटेड, देन मेन मेथड ऑफ जावा, देन वन प्रिंटिंग स्टेटमेंट, दो ब्रेसेस पे क्लोज हो गए। अभी कंपाइल करने का अलग तरीका है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट डिमॉन्स्ट्रेट करना है, हाउ टू सेंड द क्लास फाइल टू अनदर डायरेक्टरी और ड्राइव, ये करना है हम लोग को, ठीक है। नाउ सी, क्या लिखोगे, जावा सी कंपाइल करने, हाइफन डी मतलब स्विच, स्विच का काम करता है, हाइफन डी किसका काम करता है, स्विच। नाउ तुमको कहाँ पे क्लास फाइल सेंड करना है वो लिखना है, डायरेक्टरी यहाँ पे। तो सपोज सी में कंसीडर, सी वापस मैं बता रही हूँ, ये हम लोग एग्जीक्यूट भी करेंगे, डोंट वरी, अभी समझो और नोट डाउन करो। टेक नोटबुक और पेन एवरी टाइम व्हेन यू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर जावा। ई में सपोज तुमने अभी कमांड प्रॉम्प्ट पे इधर पे हो, जावा इंस्टॉल नहीं है पर मैं बता रही हूँ यहाँ से फिलहाल। ई में यू हैव सेव द फाइल, कौन सा फाइल, सिंपल डॉट जावा, ओके। यहाँ पे ई सोर्सेज इसलिए लिखा है, इन्होंने ई डायरेक्टरी के अंदर सोर्सेज फोल्डर के अंदर सेव किए, समझ रहे हो क्यों लिखा है ये मतलब ये साइट ने क्या किया है, सोर्सेज ई डायरेक्टरी में सोर्सेज फोल्डर में क्या सेव है, सिंपल डॉट जावा सेव है, ओके। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, जावा सी हाइफन डी स्विच का काम करता है, जहाँ पे तुमको डालना है क्लास फाइल। सपोज अभी मुझे ई में सेव है ना मेरा फाइल सिंपल डॉट जावा, तो मुझे वहां पे क्लास फाइल नहीं रखना है, वहां पे नहीं रखना है, कहीं और भेजना है, सी में भेजना है, सी के अंदर एक फोल्डर मैंने बनाई हूँ क्लासेस नाम का, उधर भेजना है, ये मेंशन किए। देन नाउ राइट दी क्लास नेम डॉट जावा, क्लास नेम क्या है, सपोज सिंपल है ये। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सिंटैक्स क्लियर है सबको? अभी मैं रन नहीं कर पा रही हूँ, ओके, बट श्योरली यू विल रन द नेक्स्ट लेक्चर। समझ में आ रही बात? ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग। जावा सी हाइफन डी, कहाँ पे क्लास फाइल डालना है, अभी ई में है तुम्हारा फाइल, कहाँ पे सेव है, ई में सोर्सेस फोल्डर में, ठीक है। पर तुम यहाँ पे चेंज कर रहे हो ना, अनदर डायरेक्टरी में सेंड कर रहे हो, सी डायरेक्टरी में सेंड कर रहे हो, सी डायरेक्टरी में क्लासेस फोल्डर के अंदर क्या होगा, अभी एक सिंपल डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? एवरीवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर? Syntax note down karo, everyone note down the syntax. At least give the heading what we are doing, how to send the class file to another directory or drive. This is the syntax. ये पूरा लिखना है, जब भी पता चलेगा। टाइप तो यहीं से करना है कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ से जावा सी से, बट इससे ये पता चल रहा है कि अभी ई में है सोर्स फाइल, ई में सोर्सेस फोल्डर के अंदर तुम्हारा सिंपल डॉट जावा तुमने सेव किया, लेट अस कंसीडर सेंड कर रहे हो अनदर डायरेक्टरी में, सी और क्लासेस फोल्डर में। ये लाइन नोट डाउन करो एवरीवन।
Now we will continue in the next lecture. Only less than 1 minute is remaining. See, आज थर्ड लेक्चर मेरा नहीं था ना, सरस्वती मैम का था, तो मैम लीव पे, तो मेरा 11:40 वाला लेक्चर आई हैव टेकन ना. ओके, और मीटिंग भी है आज, टीचर्स का मीटिंग भी आज 12 PM को, इसलिए मैम भी लीव पे, सरस्वती मैम, थर्ड लेक्चर मैंने अभी ली. ओके, ओके मैम.